नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जिले में किसानों पर इस साल खरीदने के लिए अच्छे बीज और खाद उपलब्ध होंगी, जेडीएस तारामणि ने कहा। एनएसयूआई ने राज्य सरकार द्वारा पाठ्य पुस्तकों में बदलाव करने का विरोध किया। ईडी ने पीएमएलए मामले में डीके शिव कुमार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। पाठ्य पुस्तक विवाद मामले को सुलझाने के लिए देवनूरू से मिलेंगे मंत्री नागेश। पंजाब के मंत्री को हटाए जाने के एक दिन बाद कर्नाटक में आप ने सरकार को भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने की चुनौती दी। हैदराबाद पहुंचे पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा परिवारवादी पार्टियां तिजोरियां भरने में लगी हैं। चंद्रकांत पाटिल ने कहा घर जाकर खाना पकाएं सुप्रिया सुले, एनसीपी ने बोला हमला। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। जिला कृषि विभाग की जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर तारामणि ने इस साल के बुआई सीजन के लिए जिले किसानों को बीज और खाद्य आदि अच्छी मात्रा में उपलब्ध हैं। इस बारे में मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिले के किसान विभिन्न फसलों की बुआई करें और जिले बीज की कालाबाजारी की रोकथाम के लिए चेक पोस्ट आदि स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा तारामणि ने जिले में हुई और होने वाली बारिश का विवरण दिया। कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। ಒಟ್ಟು 30 ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 113 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ದಾಸ್ತಾನು ಈ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ದಾಸ್ತಾನೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ। ಉಳಿದಂತೆ ಇತರೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆ ತೊಗರಿಯಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು 90,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗುರಿ ಇದೆ। ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆ ಹೆಸರು 25,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿ ಇದೆ। ನಾಲ್ಕನೇ ಬೆಳೆ ಉದ್ದು 20,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಇದೆ। ಉಳಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೋಳ ಮತ್ತು ಕಾಟನ್ನು, ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಶುಗರ್ ಕೇನು ಸುಮಾರು 25,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ। ಉಳಿದಂತೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬೆಳೆಗಳು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬರುತ್ತೆ। ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ತೊಗರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ 635 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ GRG 811 ಅಂಥೇಳಿ ತಳಿ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 336 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅಷ್ಟು, ಉದ್ದು 193 ಕ್ವಿಂಟಲ್, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೋವಾರ್ 30 ಕ್ವಿಂಟಲ್, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ 150 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಮತ್ತು ಬಾಜ್ರಾ 10 ಕ್ವಿಂಟಲ್, ಒಟ್ಟಾರೆ 1,26,926 ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಗಾಗಿ ಏನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಇಂಡೆಂಟ್ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ। ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ದಾಸ್ತಾನು ಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಮಳೆ ಮೇಯ್ನ್ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಈಗೇನು ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮು ದಿನಾಂಕ 27ರಂದು ಮುಂಗಾರು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ। ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 4ನೇ ತಾರೀಕು ಜೂನ್ ಅಥವಾ 5ರಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ IMD ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಫೋರ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕೂಡ ಈಗ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಅಂತಂದರೆ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಮಿನಿಮಮ್ 75 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಬಂದ ನಂತರವೇ ಹೆಸರು, ಉದ್ದು ಈ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರಿಕೊಳ್ತೇವೆ। ಆಮೇಲೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆ ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಬೆಳೆ ಇದ್ದು ಆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 90 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಬಿದ್ದ ನಂತರವೇ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಕೋರಿಕೊಳ್ತೇವೆ। ಆಮೇಲೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಹಾಗೂ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಇದು ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರ್ದು ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಅಂತ ಕೋರಿಕೊಳ್ತೇವೆ। ಆಮೇಲೆ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಸುಮಾರು 37,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ನಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ। ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 13,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ನಷ್ಟು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಲಭ್ಯ ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ DAP 6,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ನಷ್ಟು ಲಭ್ಯ ಇದೆ, 5,700 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ನಷ್ಟು ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬರಗಳು 1,850 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ನಷ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಲಭ್ಯ ಇದೆ। ಇನ್ನು ಮ್ಯೂರೇಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಸುಮಾರು 200 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ನು,
285 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ನಷ್ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟು, ಒಟ್ಟಾರೆ 13,740 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ನು ಲಭ್ಯ ಇದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನು DAP ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ನಮಗೆ ಮಾಹೆವಾರು ಅಲೋಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಾರ್ದು. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು, ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಎಲ್ಲ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಸು, ಇಒಸು, ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆದಿದ್ದು 17 ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಔರಾದ್, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ, ಭಾಲ್ಕಿ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜಾಗುವ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳೇನಿದೆ, ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದಂತೆ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು, ಅವರು ಕೂಡ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಸು, ನಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆಯಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ದೊರಕಬೇಕು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದ್ದು, ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿನೂ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ರೈತ ಬಾಂಧವರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಬೆಳೆಯನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಏಕ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಾರದು. ಬಹು ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ, ಅಂತರ ಬೆಳೆ, ಈ ಬಹು ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ಅವರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮಟ್ಟನ ಏನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಆಯಾ ನಾವೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष के पाठ्य पुस्तकों में बदलाव की निंदा करते हुए राष्ट्रीय विद्यार्थी यूनियन ऑफ इंडिया ने जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपकर बताया कि सरकार पाठ्य पुस्तकों में बदलाव कर RSS के विषय को शामिल कर रही है, जो निंदनीय है। इसका NSUI विरोध करता है, इसको तुरंत बदला जाए। इस संबंध में NSUI के जिला अध्यक्ष सचिन मलकापुरे ने मीडिया से बात की। कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। वन साइडेड पूरा RSS माइंडेड काम कर रहे हैं और हमारे पाठ्य पुस्तक में जो भगत सिंह रहंदे जो भी रहंदे उनका जो उसमें किताब में लिखे सो है उसको चेंज करके जो RSS मैंडेट है उनके डालना बोल के उनका जो साजिश है उसके खिलाफ हम NSUI से प्रोटेस्ट करने आए हैं। और आज के राज्य सरकार का काम ही ऐसा हो गया कि पूरा सब में स्टेट में सब इलाके में भ्रष्टाचार। आज के गुलबर्गा में भी ऐसा इसमें होंगे कौन से भी एग्जाम में कमीशन पैसा लेके आज काम कर रहे हैं, उनका और काम कुछ भी नहीं है। जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं सबका साथ सबका विकास और ना खाऊंगा ना खिलाऊंगा, इन्हों आज पूरा एक वन साइडेड इन्हों भी खा रहे हैं और उनको भी खिला रहे, तब बोलते हैं NSUI की टीम से और आपका समझो कुछ नहीं हुआ मोमेंटम से असर हुआ, क्या करेंगे आप? अब राज्य में होंगे सेंट्रल में होंगे आंदोलन पूरा उग्र आंदोलन करेंगे आगे आने वाले दिनों में। ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತೇನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಏನು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥರವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಮನವಿ ಪತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥರವರು ಒಬ್ಬ RSS ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ಕೂಡಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವತ್ತೇನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಗೀತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಗೀತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಹಾಡ ಮುಖಾಂತರ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಮಾಡಿ
ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾಡದ್ರೋಹಿ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಡು, ಇದೇ ನಮ್ಮ ನಾಡ ದ್ರೋಹಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ತಗೋಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶೂ ಇಲ್ಲ, ಸಮವಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಬಿಸಿ ಊಟದ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಠಡಿ ಏನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಯಕ ಆಗ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಉನ್ನತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಕೇಳೋದು, ಅವರ ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ಏನು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡಿಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. सर ये अभी बिदर तक ही सीमित रहेगा आपका प्रोटेस्ट? नहीं, हमारा प्रोटेस्ट एनएसए तरफ से इडी देश में कर रहे हैं ऑलरेडी, और कर्नाटक में ऑलरेडी कर रहे हैं. मैं बिदर से स्टार्ट कर रहे हैं. उन्हें राजीनामे नहीं देते तो बहुत स्ट्रांग स्ट्राइक करेंगे बिदर. हाँ, इंडिया लेवल में करेंगे भैया, नेशनल लेवल. बीदर शहर में नगर सभा द्वारा नालियों की सफाई अभियान के दौरान आम जनों को हो रही है तकलीफ। शहर के पूरे क्षेत्र में नालियों की सफाई नगर सभा द्वारा जेसीबी से की जा रही है, जिसमें आम लोगों की दुकानों और घरों को नुकसान हो रहा है। इस बीच नगर सभा काउंसलर अब्दुल अजीज मुन्ना ने स्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इस दौरान मुन्ना ने नगर सभा एईई मठ से आग्रह किया कि जेसीबी का इन छोटे नालियों की सफाई के लिए उपयोग करने से लोगों को परेशानी हो रही है, इसको बंद किया जाए और लोगों को परेशान करना छोड़े। बीदर शहर का प्रसिद्ध हाई स्कूल कैम्ब्रिज स्कूल में एसएसएलसी में उत्तीर्ण रही विद्यार्थी राफिया अमीन ने 99.68%, साना ने 98.04% और मोहम्मद साकिब ने 97.12% हासिल कर स्कूल का नाम रोशन करने से स्कूल प्रशासन द्वारा सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 5 विद्यार्थियों को स्कूल के अध्यक्ष एम.ए. जब्बार ने अपनी ओर से लैपटॉप दिया और वहीं दूसरे विद्यार्थियों को भी सम्मान कर उन्हें अच्छे प्रदर्शन के लिए सराहना की। इस अवसर पर स्कूल के शिक्षक और विद्यार्थियों के पेरेंट्स आदि उपस्थित थे। कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। अभी आपको क्या कहना है, अपने पेरेंट्स जो गाइड करें उनको एक्सेप्ट नहीं, उनकी झड़की से बात नहीं करें, उनको अवॉइड नहीं करें। उनको अवॉइड करेंगे तो बार-बार उनको मारेंगे आप तो फिर वो लोग रिलेशन नहीं जाएंगे। ये हर घर की कहानी है, ये मैं गर्ल्स से भी बोलूं, बॉयज से भी। ये शायद आज की लास्ट मोटिवेशनल स्पीच है यहाँ पे। इसके बाद ये एनवायरनमेंट आपके कॉलेज में नहीं मिलेगा। ऐसा कोई एक्सीलेंस इनफॉर्मेशन क्लास की कोई कॉलेज में नहीं है जो मेरे कॉलेज में नहीं है। मेरे कॉलेज में है शायद मौलाना साहब बैठे हैं, आपको कभी घूमना भी करते हैं मोटिवेशन क्लास। मैं तो कोई दूसरे कॉलेज में नहीं। आपके पेरेंट्स आपके साथ है, यू आर सो लकी, यू आस्क देम समबडी लॉस ऑफ पेरेंट्स हो जाए स्पेंडल लाइफ वो कैसी लगी है आपके पीछे आपके पेरेंट्स है, आपके हर ख्वाहिश को पूरी कर रहे हैं। आप लोगों को भी समझ सकती है, स्पेशल कैमरेज के बच्चे तो नहीं करना चाहिए। यहाँ में हैंडल रिक्वेस्ट है, you don't be disappointed your parents. Your parents is there, your life is success. Maybe you saw it somewhere. Parents not there to thank you. I thank Honorable Chairman Sir for providing us absolutely brilliant and talented teachers and providing the environment here. I joined the college, it was only 2 to 3 days. I recall my school journey, I was just visited. The environment which is provided here in this Cambridge Institute is the best. The teachers are very friendly and very supportive to you. The need not get in a further college. And I thank you, respected principal ma'am, who always listens our problems and she always solves our problems what we face. We used to say our problems what we are facing. Other than that, she used to solve our every problem. My success is not only my hard work. There are many teachers behind it. My parents, my teachers, every teacher's effort is flawless in your lives. One has been friendly with you, one has been very strict with you, one has been counseling. Like each one of them have been molding you, guiding you at your every step. So, firstly, I would like to call Mrs. Sunita, Vice Principal of Cambridge School. Thanks for calling.
अब देखते हैं समाचार राज्य के। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष DK शिव कुमार और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। शिव कुमार फिलहाल आयकर विभाग की शिकायत के आधार पर ED द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर हैं। देवगुरु महादेवा द्वारा राज्य सरकार से उनके लेखन को किसी भी पाठ्य पुस्तक में शामिल नहीं करने के लिए कहने के एक दिन बाद प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री BC नागेश ने एक सुलह नोट करने की मांग की और कहा कि वह जल्द ही लेखक से मिलेंगे और इस मुद्दे को सुलझाएंगे। वह एक वरिष्ठ लेखक हैं और हम उनका और उनके साहित्य का सम्मान करते हैं। मैं उनसे मिलूंगा और सहमति वापस लेने के बारे में उनके मीडिया बयान पर चर्चा करूंगा। इससे अधिक अपमानजनक और क्या हो सकता है। विषय पंक्ति के साथ एक कड़े शब्दों में बयान में मंगलवार को महादेवा ने लिखा, मुझे खुशी होगी अगर मेरा लेखन संशोधित पाठ्य पुस्तकों में शामिल नहीं है। मैं अनुमति वापस ले रहा हूँ। P लंकेश और AN मूर्ति राव जैसे लेखकों द्वारा कार्यों को हटाने पर सवालों का जवाब देते हुए नागेश ने सोमवार को कहा था कि संशोधन समिति ने महादेवा के एक पाठ को बरकरार रखा है। कर्नाटक की एक विशेष अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है। भाजपा के दिग्गज के वकील ने एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया था कि 79 वर्षीय को सागर अस्पताल के डॉक्टरों ने 10 दिनों के लिए आराम करने की सलाह दी थी, जो विशेष रूप से विपक्षी न्यूमोनिटिस के लिए उनका इलाज कर रहे हैं। कर्नाटक में विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों से विशेष रूप से निपटने वाली विशेष अदालत ने चिकित्सा आधार पर उनकी उपस्थिति से छूट दी और मामले को 17 जून तक के लिए स्थगित कर दिया। कर्नाटक विधान परिषद की 7 सीटों के लिए 3 जून को होने वाला द्विवार्षिक चुनाव निर्विरोध होना तय है, क्योंकि दाखिल किए गए सभी 7 नामांकन क्रम में हैं। सत्तारूढ़ भाजपा ने MLC चुनाव में पूर्व उप मुख्यमंत्री और पार्टी उपाध्यक्ष लक्ष्मण सावदी, पार्टी के राज्य सचिव हेमलता नायक और S केशव प्रसाद और SC मोर्चा के अध्यक्ष चालवाड़ी नारायण स्वामी को मैदान में उतारा है, जिसमें विधानसभा के सदस्य मतदान करेंगे। कांग्रेस ने अपने एक मीडिया चेहरे और बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के पूर्व अध्यक्ष M नागराजू यादव और K अब्दुल जब्बार को मैदान में उतारा है, जो वर्तमान में इसके अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और एक पूर्व MLC हैं, जबकि जनता दल S ने घोषणा की है पूर्व MLC TS सरवाना को अपना उम्मीदवार बनाया है। MLC चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर और कर्नाटक विधानसभा के सचिव MK विशालाक्षी ने एक बयान में कहा, सभी 7 नामांकन क्रम में हैं और उन्हें स्वीकार कर लिया गया है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त और गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद कर्नाटक में आम आदमी पार्टी ने सत्तारूढ़ भाजपा कांग्रेस को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तर्ज पर भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की चुनौती दी है। आपके राज्य संयोजक पृथ्वी रेड्डी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कर्नाटक के मंत्रियों के खिलाफ कई आरोप लगाए और कहा कि विपक्ष और राज्य के लोगों की मांगों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम राज्य के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और भाजपा मंत्रियों द्वारा मांगे गए 40% कमीशन शुल्क पर कई शिकायतें दर्ज की हैं। हालांकि सरकार बहरी हो गई है और मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है। 3 जून को कर्नाटक विधान परिषद चुनावों के लिए उम्मीदवारों का चयन करते समय भाजपा द्वारा येदियुरप्पा के छोटे बेटे BY विजेंद्र के नाम की अनदेखी करने के एक दिन बाद पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि उनकी पार्टी उनके बेटे को समय पर पुरस्कृत करेगी। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि विजेंद्र को भविष्य में बड़ा मौका मिलेगा। पार्टी उन लोगों को नहीं छोड़ेगी जो सक्षम और वफादार हैं। हमारा उद्देश्य 2023 में भाजपा को सत्ता में वापस लाना है और हम इसे हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अब समय है एक ब्रेक का। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए
नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। फिर से समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। हैदराबाद पहुंचे पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा परिवारवादी पार्टियां तिजोरियां भरने में लगी हैं। पीएम मोदी ने कहा परिवारवाद ने तेलंगाना को बर्बाद किया, 21वीं सदी को परिवारवाद से मुक्ति चाहिए। परिवारवाद ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, आज किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा जाता है। हैदराबाद के बाद पीएम मोदी चेन्नई जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी चेन्नई में 30,400 करोड़ रुपए से ज्यादा 11 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसमें रेल, सड़क, बंदरगाह विकास से जुड़ी परियोजनाएं प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री 2,960 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 5 परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि, मुख्यमंत्री MK स्टालिन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुळे के बारे में एक ऐसा बयान दिया है जिसने सूबे की राजनीति में हलचल मचा दी है। एक प्रोटेस्ट के दौरान पाटिल ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुळे राजनीति में रहने की बजाय घर जाकर खाना पकाए। पाटिल के इस बयान पर एनसीपी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह अपने सांसद के अपमान पर चुप नहीं रहेंगी। चंद्रकांत पाटिल ने बीजेपी की मुंबई इकाई की ओर से स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने की मांग को लेकर किए जा रहे एक प्रोटेस्ट के दौरान बुधवार
सोमवार को सुड़े पर जमकर निशाना साधा था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनावों में ओबीसी आरक्षण की इजाजत दे दी थी। इसके बाद सुड़े ने कहा था कि उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दिल्ली यात्रा के दौरान उनसे संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने यह जानकारी नहीं दी थी कि आरक्षण के लिए मंजूरी हासिल करने के लिए उन्होंने क्या किया। ज्ञानवापी मामले पर आज हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष में 2 घंटे तक बहस हुई, जिसके बाद सोमवार को दोपहर 2 बजे तक सुनवाई टल गई। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने वाराणसी जिला कोर्ट में बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी में शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि शिवलिंग में 63 सेंटीमीटर का छेद किया गया है। जिस औजार से शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया वो मस्जिद के स्टोर रूम में मिला। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ज्ञानवापी में शिवलिंग के नाम पर अफवाह फैलाई जा रही है, ये याचिका सुनने लायक ही नहीं है। हिंदू पक्ष के इन आरोपों ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में नया ट्विस्ट लिया है। याचिकाकर्ता विष्णु जैन का दावा है उनके इल्जाम एकदम सही हैं और इसके सबूत हैं। मुस्लिम पक्ष ने महापाप किया है, महादेव का अपमान किया है। वो कोर्ट में अपनी बात को साबित कर देंगे कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की गई है और आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। सड़क छेड़छाड़ के विरोध में 2 पक्षों के बीच फायरिंग का मामला, सीओ ने किया घटना का पर्दाफाश। दोनों पक्षों के 6 लोग गिरफ्तार, 7 वांछित अपराधियों की पुलिस कर रही तलाश, जल्दी भेजेगी जेल। पुलिस का चला धरपकड़ अभियान। सबल नखासा थाना इलाके के ताजपुर का मामला, गांव में छेड़छाड़ के विरोध में 2 पक्षों के बीच फायरिंग का मामला, सीओ ने किया घटना का पर्दाफाश। दोनों पक्षों के 6 लोग गिरफ्तार, 7 वांछित अपराधियों की पुलिस कर रही तलाश, जल्द भेजेगी जेल। पुलिस का चला धरपकड़ अभियान। 13 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था बवाल करने का मुकदमा। फायरिंग में 5 लोग हुए थे घायल। गिरफ्तार आरोपियों से बंदूक और 2 तमंचे व कारतूस किए गए बरामद। सीओ ने किया घटना का पर्दाफाश। संभल से राजा हुसैन का कवरेज। पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार को 6 दिनों की मोहलत देते हुए कहा, अगले महीने सरकार चुनाव का ऐलान करे, नहीं तो फिर 20 लाख लोगों के साथ इस्लामाबाद आऊंगा। इससे पहले देर रात इमरान खान की आजादी मार्च का काफिला इस्लामाबाद में दाखिल हुआ। इमरान खान के मार्च में शामिल लोगों और उन्हें रोकने के लिए मौजूद सुरक्षा बलों के बीच जमकर संघर्ष हुआ। सुरक्षा कर्मियों ने आंसू गैस के गोले दागे। वहीं आजादी मार्च में शामिल लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। इमरान के आजादी मार्च के मद्देनजर इस्लामाबाद को रेड जोन घोषित कर दिया गया। सुरक्षा हालात के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने सेना को तैनात करने का निर्देश दिया। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। टीआरपी लिस्ट में अनुपमा नंबर 1 की गद्दी पर बरकरार। ये रिश्ता क्या कहलाता है ने की दमदार वापसी। अब समाचार खेल जगत के। लखनऊ पर दबाव बनाने वाले हर्षल पटेल बनना चाहते हैं डेथ ओवर विशेषज्ञ। अंत में समाचार बाजार के। हिंदुस्तान जिंक में सरकार की 29.5% हिस्सेदारी, बिक्री को कैबिनेट ने दी मंजूरी। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। जिले में किसानों पर इस साल पेरनी के लिए अच्छे बीज और खाद उपलब्ध होंगी, जेडीएस तारामणि ने कहा। एनएसयूआई ने राज्य सरकार द्वारा पाठ्य पुस्तकों में बदलाव करने का विरोध किया। ईडी ने पीएमएलए मामले में डीके शिवकुमार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। पाठ्य पुस्तक विवाद मामले को सुलझाने के लिए देवनूरू से मिलेंगे मंत्री नागेश। पंजाब के मंत्री को हटाए जाने के एक दिन बाद कर्नाटक में आप ने सरकार को भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने की चुनौती दी। हैदराबाद पहुंचे पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा परिवारवादी पार्टियां तिजोरियां भरने में लगी हैं। चंद्रकांत पाटिल ने कहा घर जाकर खाना पकाएं सुप्रिया सुले, एनसीपी ने बोला हमला। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ अगले बुलेटिन में। धन्यवाद।